for ZLearn, क्योंकि ZLearn, India was represented by ZLearn for early childhood education. ZLearn has 700 preschools across the country, present in every state, reaching to every child. And our objectives and our mission of providing affordable quality early childhood education matched with that of OMAP, and that is why we were called to represent India. स्कूल ऑडिट के क्या क्या फायदे हैं और बच्चों के लिए कितना उपयोगी है? स्कूल ऑडिट brings in standardization, और जो हम मुंबई में अपना हेड ऑफिस है, इधर सब plans are made over here. Whether the plan is executed by the teachers for the children is what is checked by the audit. अगर हम ऑडिट बराबर हम करते हैं और चेक करते हैं, children get consistent experience. तो बच्चे को ये फायदा है कि जो वो सीख रहे हैं और उसका मेथड क्या है, उनका मटेरियल क्या है और उनका मैन पावर कैसे यूज करते हैं, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है और बच्चे को कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपके यूनिक टीचिंग पैटर्न के लिए आप टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं? टीचर्स को हम 60 आवर्स ट्रेनिंग देते हैं हर साल। ये 60 आवर्स 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज है 20 घंटे के लिए, where we make all the teachers come together and we do a face-to-face training. At the end of 20 hours, an examination is given and the teacher is graded. फिर the next 20 hours हम school-based support देते हैं. We observe the teachers and give her a feedback, and we once again grade the teacher and see if there is improvement. And the third phase is also school-based, where we train the teacher once again. At the end of 60 hours, each teacher is graded and given a certificate. आप अपने स्टूडेंट्स और टीचर के इंटरेक्शन को किस तरह डेवलप करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। टीचर्स और स्टूडेंट्स को हम कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स के द्वारा हम इंटरेक्शन इंक्रीज करते हैं, और टीचर्स को हम टीचर्स वर्कशॉप भी करते हैं अलॉन्ग विद पेरेंट्स, ताकि वो बच्चे को ज़्यादा जानकारी मिले पेरेंट्स के द्वारा, एंड वी मेक देम इंटरैक्ट अ लॉट विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स टुगेदर in a way, in group setting techniques as well as individual techniques, so the interaction between the teacher and the child increases to better learning. जब हम छोटे बच्चों की डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके ग्रोइंग प्रोसेस में पेरेंट्स को हम किस तरह इन्वॉल्व करते हैं? Parents are very important and integral part of our system. Parents have given birth to a beautiful life and have given us an opportunity to be part of that life. इस मौका को हम लोग पेरेंट्स के साथ साथ वो बच्चे को हम हमारे साथ लेके जाते हैं। वी कंडक्ट अ नंबर ऑफ वर्कशॉप्स। पेरेंटिंग स्टाइल के हिसाब से हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। पेरेंट्स के लिए हम क्वेश्चनर देते हैं, उनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है उनको खुद सीखने के लिए हम क्वेश्चनर्स करते हैं। फिर वर्कशॉप भी करते हैं, एंड वी गाइड द पेरेंट्स टू एनेबल द चाइल्ड टू ग्रो इन द राइट डायरेक्शन। पॉइंट ए। पॉइंट बी, हमारा द पेरेंट्स एंड द स्कूल मस्ट हैव द सेम पाथ to lead the child on, and that is why we involve parents regularly, and we have effective parenting techniques and parenting workshops done at least 4 times in a year. 21वीं सदी के स्टूडेंट में क्या खास बात है और इसमें ZLearn का क्या योगदान है? Very beautiful question. Every classroom in today's country is nurturing the child for the 21st century. और अपना classroom, कोई भी हम classrooms देखते हैं, there's still a 19th century classroom which is nurturing a child for the 21st century. 21st century child needs to be equipped with life skills, competence and character with effective habits. And these are the 3 things that we focus in ZLearn classrooms. Also, ZLearn believes that tomorrow is a world of a digital economy driven by a digitalized environment. So the child of the 21st century needs to be nurtured in a digitalized environment, which ZLearn provides in ample ways in the teaching learning methodology. Along with it, we have a ubiquitous method where value education is imparted through the curriculum. So when the child passes out of any ZLearn school or preschool, the child is equipped with life skills, competence and character with a digitalized background to face the 21st century. आज के दौर में कंपटीशन कितना जरूरी है और आप अपने स्टूडेंट को किस तरह तैयार करते हैं? कंपटीशन का शब्द किस रूट से आता है पता है? कॉम्पिटेंस इज द रूट ऑफ द वर्ड कंपटीशन. अगर हर बच्चे के अंदर जो क्षमता है
उसको हम आगे डेवलप करके हर बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि ये आपका ताकत है और ये आपका कमज़ोरी है। बच्चे डरते नहीं हैं कंपटीशन से, क्योंकि बच्चे ये सीख जाते हैं अपने आप से कैसे जीतना है और अपने आप से कैसे बेटर करना है। वी फर्मली बिलीव that children must be taught how to better themselves, not better another person, for competition is within, not without, because competence is within, not without. This is how we train our children to face the world. The world is not competitive, people are, and we teach our children not to be part of the rat race. इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपको इसी सेगमेंट में जी लर्न के और डिवीजन के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिनको आप आज के दौर में काबिल, होनहार और सॉलिड फ्यूचर देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे इस शो के साथ। इनोविजन मीडिया को जरूरत है कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव की, और क्रिएटिव टीम में जरूरत है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिटर्स की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 022-2871-0321 या 022-2871-3228 पर, या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट पर www.innovisionmedia.in। चालू वित्त वर्ष 2011-2012 की समाप्ति पर करीब 80 लाख करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार इसकी अधिसूचना जून के पहले हफ्ते में जारी कर देगी। इसके बाद वेतन से 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरना आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा आकलन वर्ष 2010-2011 के सभी रिफंड का भुगतान अप्रैल के अंत तक कर दिया जाएगा। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस आय वर्ग के लोगों को आयकर रिटर्न से छूट देने की घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन सुधीर चंद्रा ने बताया कि जिन लोगों की अतिरिक्त आय नहीं होगी और जिनका रिफंड नहीं बनता, उन्हें आयकर रिटर्न नहीं भरना होगा। इसके अलावा आयकर विभाग अब इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न दाखिल करने वालों को 1 महीने के भीतर ही रिफंड जारी कर देगा। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका नौकरी पाने का। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871 0320 और 022-2871 0321 या लॉग इन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। आपके आने के बाद डिपार्टमेंट में क्या क्या बदलाव आए हैं? हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट में सब्जेक्टिविटी कम करने की भी काफी कोशिश की है, क्योंकि कुछ होता था कि भाई यहाँ करप्शन होती है, वहाँ करप्शन होती है, तो सब्जेक्टिविटी कैसे कम की। एक उदाहरण देता हूँ आपको। पहले क्या था कि अगर आपकी रिटर्न आप लेट भर रहे हैं तो 10,000 रुपए की पेनल्टी थी। 10,000 रुपए की पेनल्टी अगर आप लेट रिटर्न भर रहे हैं, लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर को उसको कम करने की पूरी मुभा थी। मतलब उसको हियरिंग देता था और फिर उसके कारण देख के वो कभी 2,000 रुपये ले आए, कभी कुछ ले आए। मेरे पास कंप्लेंट्स आई कि उसमें रिश्वत चल रही है कई जगह पे, कि ये 10,000 है तो कोई बोलता है कि मैं उसका तुम्हारा 1,000 कर दूंगा और तुम 2,000 मेरे को दो। तो हमने ये गवर्नमेंट के पास इशू उठाया। गवर्नमेंट से हमने ये अमेंडमेंट की एक्ट में। अमेंडमेंट ऐसे की कि 10,000 की पेनल्टी को 5,000 कर दिया, लेकिन डिस्क्रिशन नहीं कोई। 5,000 की अब कंपल्सरी पेनल्टी है। आपने लेट रिटर्न फाइल की है तो कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हियरिंग नहीं, कोई रिडक्शन नहीं, अब 5,000 की पेनल्टी है उसकी, तो कोई उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। तो वो सारी डिस्क्रिशन ही निकल गई। तो इस तरह से कई स्टेप्स इस डिपार्टमेंट में लिए गए हैं, जिससे डिपार्टमेंट में काफी सारा मेंटेलिटी बदल गई है, सुधार हो रहा है। हमारा शिफ्ट पहले जो क्लरिकल एनालिसिस था से मेंटल एनालिसिस पे हो गया, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जो पहले इंफॉर्मेशन सिर्फ कलेक्शन का प्रॉब्लम होता था,
अब कलेक्शन कंप्यूटर पे हो रही है, मैचिंग हो रही है, अब हम उसका एनालिसिस करते हैं। अभी अगले 6 महीने के अंदर हम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यूज करने वाले हैं, डाटा वेयरहाउस एंड BI टूल्स। सिर्फ कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास CBEC में दिल्ली में ये सिस्टम है, अब वही वैसा ही सिस्टम हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। एक और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहीं पे भी दूसरी स्टेट में अभी ये नहीं है कि एक डीलर है, हमारे जो रिटर्न फाइल करते हैं उनको डीलर बोलते हैं, इनकम टैक्स में उसको SSC बोलते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स में क्या रिटर्न फाइल कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे क्या फाइल कर रहा है, कस्टम्स में क्या इम्पोर्ट दिखा रहा है, सर्विस टैक्स में क्या दिखा रहा है, इसका कोई मेल जोल नहीं। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है महाराष्ट्र के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके। चारों जगह का मेल जोल हो रहा है कि वहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या दिखा रहा है, और सेम दिखा रहा है कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आने लग गई। इनफैक्ट अब हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारे ऑडिट इस चीज के ऊपर बेसिस हो गया है। पहले ज्यादा हम मार्केट इंटेलिजेंस पे करते थे, अब हम एनालिसिस पे करते हैं। इस तरह से डिपार्टमेंट के अंदर का भी सुधार, प्लस कंज्यूमर्स को सारी सर्विसेज देनी ताकि वो लाइनों में ना लगे। जैसे पहले C फॉर्म लेने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 2000 लोगों की लाइन लगती थी। 2000 लोग रोज लाइन लगाते थे C फॉर्म लेने के लिए। उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक करने से अब वो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करता है, उसको लाइन में तो लगना नहीं पड़ता, और रजिस्टर्ड पोस्ट से हम उसको C फॉर्म भेजते हैं। वो C फॉर्म उसको अब रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुंचने से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अभी भी प्रोसेसिंग के कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि C फॉर्म देने के लिए हमको दूसरी स्टेट के साथ भी कुछ क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है, उसकी रिटर्न के साथ भी करनी चाहिए। तो कुछ डिलेज कई बार होते हैं, लेकिन वो भी हम अब एलिमिनेट करने वाले हैं, ये सारे डिलेज। इनफैक्ट अगला स्टेप ऐसा है, 10 स्टेट्स के साथ हमने टाई अप किया हुआ है कि ये फॉर्म जो आज हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली दूसरी स्टेट में पहुंच जाएगी। परचेजर और सेलर के पास भी इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाएगा। तो क्रॉस चेक के इश्यूज वगैरह भी सारे खत्म। बीच में हमने कुछ बोगस C फॉर्म पकड़े, तो वो वाला इशू भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जैसे ही ये C फॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है। इस तरह के कई स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे भी एक और आपको थोड़ा अचंभा होगा कि हम लोग क्या करते हैं। यहाँ हर महीने यहाँ पे एक मेडिटेशन का कैंप भी लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के लिए, करेक्ट वैल्यूज देने के लिए। सरप्राइजिंगली यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के कैंप हो चुके हैं, यहाँ पे विपश्यना का कैंप हो चुका है, यहाँ पे सहज मार्ग मेडिटेशन का कैंप हो चुका है। मैं खुद सहज मार्ग मेडिटेशन करता हूँ। तो ये सारे कैंप करके हम एक मेंटालिटी भी नई तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि हम लोग, मैंने MBA किया हुआ है, MBA में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में वो पढ़ाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो चेंज होगा। मेरा ये कहना है कि जब तक आप कोई इस तरह की चीज नहीं करते जैसे कि मेडिटेशन है, असलियत में कोई चेंज नहीं होता, कोई आदमी नहीं बदलता। उसको नॉलेज मिलती है, MBA में उसको नॉलेज मिलती है, लेकिन अंदर से कोई चेंज नहीं होता। अंदर से चेंज तभी होता है जब इस तरह की कोई प्रोसेस में जो हम अभी कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन उसमें शुरू कर दी, तो अंदर से ही, मन से वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो वो प्रोसेसेस हमने यहाँ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक मेडिटेशन रूम खुला हुआ है ताकि वो लंच ब्रेक में जाके मेडिटेशन कर सकता है, और आफ्टर ऑफिस आवर्स कुछ देर बैठना चाहे तो मेडिटेशन में बैठ सकता है। इस तरह की कई एक्टिविटीज यहाँ पे शुरू की गई है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। बढ़ते जाना है, मुट्ठी में कर ले जहां, अब पीछे नहीं हटना है। Just come along, let's go together.